السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ہم سب مل کر پڑھیں گے درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی، اللہ کے کرسی کے بارے میں ہے۔ اٹ از دا موسٹ پاورفل آیت آف دا قرآن۔ اس کی ہم ابھی تلاوت کریں گے۔ نشاط I will play it انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ یہ آیت جو الحمدللہ ہم سب کو زبانی یاد ہے، اور کیوں نہ زبانی یاد ہو، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اسے یاد کرنے کے، روز اس کا ذکر کرنے کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ ان دا انٹائر قرآن ہاؤ مینی آیاتس آر دیر؟ شمیم؟ Badi 6,666. Exactly, 6,666 آیات۔ اینڈ آؤٹ آف سو مینی آیات، یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اٹ از دا موسٹ پاورفل آیت آف دا قرآن۔ کیا ہے اس آیت میں جسے ہم روز تو پڑھتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تھوڑا اور غور و فکر کریں گے کہ اس سے ہم اور کیا سیکھ سکتے ہیں، کہ کیا اس آیت سے محبت ہمیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ
آج ہم اسے اتنے غور و فکر سے with deep understanding we will focus upon it so that it becomes my favorite ayat of the Quran inshallah. چلے kindly share the screen. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. یہ پوری ایک آیت ہے، اسے ہم لوگ کیا کریں گے 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. ہاؤ مینی پارٹس؟ 9 پارٹس. تو دیکھیں ٹھہراؤ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یہاں تک کہ فرسٹ پارٹ آپ لوگ لکھتے چلیے، بیکاز یہ جو پارٹنگ ہم کر رہے ہیں دس ول ہیلپ اس انڈرسٹینڈ دا میریکل آف دس آیت. میریکل. تو فرسٹ پارٹ قیوم پہ ختم ہوگا. سیکنڈ پارٹ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. نوم پہ سیکنڈ ٹھہراؤ ہے، سو وہاں پہ نمبر 2 لکھیں گے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر ٹھہراؤ ہے، سو نمبر 3. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ ہوگا 5. آپ لوگ نمبرنگ کر رہے ہو؟ یعلم ما باجی بین، 4. ہاں یہ ہوگا 4. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ ہوگا 5. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ہوگا 6. وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ ہوگا 7. ولا یعودہ حفظہما، یہاں پہ ٹھہراؤ ہے، سو 8. وہو العلی العظیم 9. میں نے نہیں کیے اس کے 9 پارٹس، اللہ تعالیٰ نے کیے کیونکہ اس کے اندر ٹھہراؤ ہم کو ملے 9. سو دیر آر 9 statements in one آیت. اور یہ 9 statements کیسے کو ریلیٹڈ ہے؟ دیر از اے بیوٹیفل سیمیٹری، میجیکل میراکولس سیمیٹری، لنگوسٹک سیمیٹری ان دس آیت. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے اس کا میننگ. اس آیت کو لینے سے پہلے which is the first آیت of قرآن پاک؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں which is the first آیت that we read؟ سورہ فاتحہ. yes آیت. which is the first آیت؟ الحمد للہ رب العالمین. دیکھیں بسم اللہ تو ہے but it is not counted as آیت number 1. It precedes every surah. So ayat number 1 of Surah Al-Fatiha of the Quran is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. That's it. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرسٹ انٹروڈکشن اپنا دے دیا تھا. اس کے بعد اگر سورہ بقرہ اب کمپلیٹ ہونے کو آئی ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں who is Allah, write the question, who is Allah, how is Allah, where is Allah, who is Allah, how is Allah, where is Allah, and how many, and how many. اتنے سارے کویشچنس ہمارے دل میں اگر آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہمیں اس ایک آیت میں دے دیا ہے. ہاں جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ، اللہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، none worthy of worship، الا ہوا، سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، کیسا ہے اللہ؟ الحی، ہمیشہ زندہ. اللہ always living. اور الحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ خود بھی ہمیشہ زندہ ہے، لیکن اللہ is the source of life.
سب کو حیاتی دینے والا, سب کو زندگی بخشنے والا وہی صرف ایک ہے, الحی. اور القیوم اللہ ہمیشہ قائم ہے اور قائم رہے گا, اور وہی ہم سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. اللہ is the one who maintains every being. اوکے, تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرسٹ انٹروڈکشن جو ہمیں مل رہا ہے. اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے کتنے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیا اللہ کے نام نظر آ رہے؟ پلیز فوکس اپون دی آیت. اللہ, یہ اللہ کا پرسنل نیم ہے, اللہ. الہ, لا الہ, نہیں کوئی معبود, تو الہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے, isn't it? سو ایک تو ہوا اللہ, the personal name of اللہ. دوسرا ہے الہ, پھر ہے الحی, اینڈ دین القیوم. یہ چاروں نام کس کے نام ہے بتائیے؟ Whose names؟ اللہ کے ولی. اللہ کے نام. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جانتے ہو یہ تمہارا اللہ, میں اللہ صرف ایک ہے, کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں نا, قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ صرف ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. لم یلد ولم یولد, نہیں اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. ولم یقل لہ کفوا احد, اور نہیں کوئی اس کے برابری کا کوئی ایک. تو وہاں پر الہ ورڈ نہیں آیا تھا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ whom do you worship? اللہ. Why? Because Allah is your creator, not only آپ کا خالق but آپ کا رب بھی. اور یہاں آ گیا الحیو. بتاؤ مجھے کیا تم زندہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے بتاؤ مجھے کیا تم زندہ ہو؟ تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو, کیا ہم زندہ ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو ذرا ہاتھ اوپر کر لیجئے. What a silly question. ہم سب زندہ ہیں. تو پھر کہاں سے آئی میں؟ تو میں کہاں سے آئی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی. کوئی اور مجھے زندگی عطا کر ہی نہیں سکتا. تو اس کا کلیم بھی اللہ نے کر دیا اس آیت میں کہ وہ الحیو ہے, اللہ خود بھی زندہ ہے. He is the source of life. ہر کریشن اللہ کی ہے. اللہ, he was neither born nor will he end. He will always remain. حیاتی اللہ کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے. اللہ کے لیے حیاتی ہمیشہ کے لیے ہے. اور یہ جو زندگی اور موت ہے یہ ہمارے لیے ہے, ہم کریشن کے لیے. بٹ اللہ کے لیے, اللہ از ایٹرنیٹی, ایٹرنل. اور القیوم, ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بناؤ اور پھر اسے مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو قیوم ورڈ ہے نا, اللہ کا نام, بیوٹیفل نیم, اٹ شوز کہ اللہ جو ہے وہ اس نے صرف ہم سب کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, ہم سب کو قائم رکھے ہوئے ہے, ہم سب کو مینٹین کر رہا ہے. ہم سب کی ضرورتیں پوری کرنا, جو رب العالمین میں جو ملتا ہے ہم کو, کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے. بٹ کین یو امیجن دی پاورز آف اللہ؟ اتنی مخلوق کو کریٹ کرنا. کین یو امیجن ہاؤ مینی کریشن؟ ایک تو ہیومن بینگز ڈے 1 سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک, پھر اتنے انسیکٹس,
उतने एनिमल्स, प्लांट्स, स्टार्स, हमने उस दिन देखे थे हाउ मेनी स्टार्स, वी कैन नॉट काउंट, खरबों 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 में है स्टार्स जो हमें पता है, उसके अलावा एवरी डे न्यू स्टार्स आर बॉर्न. अल्लाहु अकबर. एंड एक्वेटिक्स, और जो ये सारी क्रिएशन में से जो गुजर गए वो गुजर गए, जितने आज है और अब कयामत तक रहेंगे. कितनी क्रिएशन है अल्लाह की. सो इन सब को पैदा करने वाला क्या सुपर पावर है वो. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को पहचानना इस एक आयत हमारे लिए काफी हो जाए कि अगर इतनी मखलूक को पैदा करने वाला वो अकेला है, then who deserves to be worshipped? Who deserves to be worshipped? Only Allah alone. अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक हो ही नहीं सकता. और पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हर एक को वो पाल रहा है, थामे हुए है, कायम रखे हुए है. सुभान अल्लाह. ये थी आयत नंबर 1. फिर आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 2 पे. ला ताखुजुहु, ला नहीं, ताखुजुहु नहीं पकड़ती, अखज़ वर्ड है इसमें, नहीं पकड़ती उसको, किसको, अल्लाह को, सिनतू झपकी, नहीं आती अल्लाह को एक झपकी. झपकी किसे कहते, ऊंघ, कच्ची नींद, एक नींद का झोंका भी नहीं आता अल्लाह को. वला नौम, और ना ही उसे नींद आती है. अल्लाह ताला की ये क्वालिटीज हमको बताई गई कि अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है. क्योंकि नींद किसको आती है और ऊंघ किसको आती है, जो कमजोर होता है. किसे आती है, जो कमजोर होता है. वन हु इज वीक. हम इंसान कमजोर है ना, अल्लाह ताला ने ही फरमाया कि इंसान कमजोर बनाया गया है. और हम खुद रोज एक्सपीरियंस करते हैं कि हाउ डू यू फील आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे. आपको नींद भी आती है, आप थकते भी हो, isn't it? So how do you feel? You feel tired, drowsy, sleepy. क्या संभाल रहे हो आप कि आपको इतनी नींद और थकन आ जाती है रात तक. कि हमारा एक 2 बेडरूम का घर है, हमारे 2 बच्चे हैं, हो सकता है हमारे माँ बाप हो, एक ऑफिस है ना, कुछ स्टाफ है, एक गार्डन है, हो सकता है, एक ऑफिस है. इतना थोड़ा सा काम करके और इतनी चीजों को संभालते हुए रात होते ही हम थक जाते हैं और हमें नींद आने लगती है. तो ये है हम इंसानों की कमजोरी. लेकिन वो तो रब्बुल आलमीन है, वो जो तमाम जहानों को बनाने वाला है, उन सब को थामे हुए है. उसके लिए ये कोई कमजोरी है ही नहीं, बिकॉज ही इज ऑल पावरफुल. सुभान अल्लाह. अल्लाहु अकबर. देखिए कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में बनाया. बताओ सुरैया, अल्लाह ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में बनाया. बाजी 7 दिनों में और 7 रातों. नहीं हुस्ना बाजी, 6 दिनों में. 6 दिनों में इज द राइट आंसर. तो अभी अल्लाह के लिए वो दिन इज हमारे दिन के बराबर नहीं है. वो वी डोंट नो, इट इज लाइक अल्लाह ने उसे 6 दिनों में बनाया या 6 मिनट्स में बनाया या 6 सेकेंड्स में बनाया, बिकॉज द टाइम इज हमारे लिए वो एक फिजिकल मैटर है. फॉर अल्लाह इट मे बी सम अनदर मैटर. तो जब अल्लाह ने 6 दिनों में जमीन और आसमान बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ लोग कहने लगे कि 7वें दिन अल्लाह थक गया और वो सो गया.
ये हम इंसानों की बातें तो ऐसी होती है ना, बिकॉज हम भी 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन हमको संडे चाहिए होता है, बट अल्लाह डजंट नीड एनी संडे, अल्लाह डजंट नीड एनी हॉलीडे, अल्लाह डजंट नीड एनी ब्रेक, बिकॉज वो अल्लाह है, वो हमारा रब है, वो अल हय्यु अल कय्यूम है, तो उसे कोई ब्रेक नहीं चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस बात को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया कि ना अल्लाह को नींद आती है, ना थकन होती है, ना झपकी आती है और ये सब जो है इंसानी कमजोरी है। अब देखिए कि अगर कभी सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हो आपने, सिक्योरिटी गार्ड्स वो क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या काम होता है? आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि उनको सिर्फ क्या करना है, बाहर गेट पर बैठकर सिक्योरिटी मेंटेन करनी, और जब ऐसी कोई वहां पर फिजिकल वर्क नहीं होता है तो बैठे बैठे घड़ी को ताकते हुए और वो सीसीटीवी कैमरा पर देखते हुए स्क्रीन पर बैठे बैठे क्या होता है, देखिए गार्ड की हालत, उसे सबसे ज्यादा नींद आती है और वो सबसे ज्यादा यॉन करता है। Isn't it? Do you agree with me, निशात? यस बाजी। है ना? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला को पूरे जमीन और आसमान तो हमारे लिए है, अल्लाह के पास तो उससे बड़ा यूनिवर्स है, उसके पास एक जमीन नहीं 7 जमीन, एक आसमान नहीं 7 आसमान है, अल्लाह का अर्श है, इतने सारे सोलर सिस्टम्स और इतने सारे गैलेक्सीज है, उन सब को संभालने के लिए अल्लाह को बिल्कुल न नींद आती है न थकन आती है, बिकॉज अल्लाह हैज अनलिमिटेड पावर्स, Allah has infinite powers, subhanallah, and that is why Allah is always available to accept our duas. हमारी दुआओं के लिए अल्लाह 24 घंटे any time, Allah is always there for us, subhanallah. फिर इसमें आता है थर्ड पोर्शन, लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, ल लिए, हु उसके, अल्लाह के लिए, माफिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, whatever is in the skies, व माफिल अर्द और जो कुछ जमीनों में है। अर्द इंग्लिश में तो हम अर्थ कहते हैं और यहाँ पर भी अर्द है और जमीन, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो जमीन और आसमान है इसमें जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है। Who is the owner of this earth? पूरी जमीन का मालिक कौन है बताओ? पूरी जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हान ताला। अल्लाह है। और आसमानों का मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये मेरा घर है, हाँ ये मेरा घर है और ये मेरी शॉप है और ये मेरा बिजनेस है और ये मेरी औलाद है, और कहते हैं मेरा हाथ है और ये मेरा पैर है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने हमें लिमिटेड ओनरशिप दी है, टेम्पररी लिमिटेड ओनरशिप, टेम्पररी, लेकिन परमानेंट ओनरशिप किसकी है? अल्लाह की। परमानेंट ओनरशिप एंटायरली अल्लाह की, जमीन और आसमानों की भी। अब जमीन में तो हमने कर ली ओनरशिप, क्या आसमान में भी हम ओनरशिप करते हैं? अभी तो जा रहे हैं ना कि मून पर भी घर बना रहे हैं और मार्स पे भी घर बना रहे हैं और फिर उसको भी सेल कर रहे हैं। हाँ, कि कितना इंसान चीटर बन गया ना, कि मार्स पे घर बनाएंगे और तुमको बेचेंगे और हम बेवकूफ उसे खरीदेंगे भी। तो ये ओनरशिप की कितनी लालच है इंसान को। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन और आसमान की ओनरशिप, और सिर्फ ओनरशिप ही नहीं, अथॉरिटी भी अल्लाह की।
एक होता है मलिक और एक होता है मालिक. लुक एट द स्क्रीन इफ यू कैन. एक होता है मालिक और एक होता है मलिक. ओनर. मालिक ओनर, मलिक बादशाह. व्हाट इज द डिफरेंस? आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि जो बादशाह होता है, मलिक होता है, वो किस पर राज करता है, उसकी पावर किस पर चलती है? लोगों पर, उसके किंगडम पर. लेकिन मालिक जो होता है ना, वो सिर्फ बादशाह नहीं होता, क्योंकि बादशाह तो एक के बाद एक दूसरा आएगा. लेकिन अल्लाह ऐसा परमानेंट मालिक है कि वो ओनर भी है. किसका? सिर्फ एक बादशाहत का, एक किंगडम का नहीं, तमाम किंगडम्स का. और नॉट ओनली इज ही द ओनर, बट अथॉरिटी भी सिर्फ अल्लाह की चलती. कैसे? कि जमीन और आसमान में आप सबसे पावरफुल चीजें क्या देखते हो? जमीन और आसमान में सबसे पावरफुल चीजें क्या नजर आती है हमको? बताइए. जी सन, मून, वेरी स्टार्स. गुड, वेरी गुड. यस. तो हम लोग तो वो सन और मून के सामने और स्टार्स के सामने कितनी छोटी सी चीज है. अगर ये सबसे पावरफुल चीजें, सन, मून, स्टार्स, ये सब अल्लाह के फरमाबरदार है, दे आर मोस्ट सबमिसिव टू अल्लाह. अल्लाह के हुक्म से दे राइज एंड दे सेट. और जमीन में एक पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर. और जमीन में एक फूल भी नहीं खिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर. और एक सीड भी स्प्राउट भी नहीं करता, उसमें जान नहीं पड़ती जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो. तो जमीन और आसमान और उसके अंदर के इनफिनाइट चीजें जो है, उन सब का मालिक वो अकेला रब है. और इस सब को संभालने में ना वो थकता है, ना उसे नींद आती है. सुभान अल्लाह. ये उसकी सिर्फ मिल्कियत ही नहीं, यहाँ पर उसकी हुकूमत भी है. और उसकी हुकूमत में, इसकी मिल्कियत में उसे बिल्कुल थकन महसूस नहीं होती. सुभान अल्लाह. इसके आगे की आयत पर, पोर्शन पर चलने से पहले कुछ हदीस हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में. देन वी विल मूव अहेड सो दैट हदीस भी शेयर हो जाए इंशाल्लाह. तो पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने आयतुल कुर्सी के बारे में कौन कौन सी हदीस ऑलरेडी सुन चुके हो, पढ़ चुके हो. सो आप लोग शेयर कर सकते हो. प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि आप लोगों को भी बोलने का मौका मिले. ये शमीम. बाजी, हमने सुना है कि घर से बाहर निकलने के वक्त अगर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजते हैं. अगर दो बार पढ़े तो अल्लाह ताला दो फरिश्ते भेजते हैं अपनी हिफाजत के लिए. और अगर 3 बार पढ़े तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खुद इसकी हिफाजत करूंगा. अच्छा, ऐसी ऐसी हदीस आपने सुने हो? जी बाजी. Okay, but this hadith is not authentic what you have said. Okay, so it's okay. हमें नहीं पता होता है ना कि क्या क्या सही है और क्या गलत है, जब तक कि हम उसे सही हदीस से हासिल नहीं कर सकते. इसलिए ये जानना जरूरी है पहले कि क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन. ये संजू. हम सोने के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं तो मौत के सिवा हर चीज से बेखौफ हो जाते हैं ना. अच्छा अच्छा, ये आपने हदीस बोली है. अभी हम लोग देखेंगे कि सही हदीस में हमको क्या मिलता है. शाहीन, आप भी बोल दो. अस्सलाम वालेकुम बाजी. मैंने ये सुना है कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाले को कब्र के अजाब नहीं होते हैं. एक फरिश्ता नाजिल किया जाता है कि वो जब कब्र में डाला जाएगा तो उस वक्त वो हमारी हिफाजत के लिए वहां पर होंगे, ये बताने के लिए कि ये आयतल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद बंदा पढ़ता था. अच्छा, तो देखिए कि हम लोगों को ऑथेंटिक हदीस से पता भी नहीं है. ऑथेंटिक हदीस से हम लोग को मालूम नहीं है. इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे. खा सकते क्या?
अभी हम लोग देखेंगे ऑथेंटिक हदीस अबाउट आयतल कुर्सी, और ये हदीसें ना हमें पता चलेगा कितनी पावरफुल ये आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever recites ayatul kursi immediately after each prescribed prayer, जो कोई आयतल कुर्सी को हर फर्ज नमाज के फौरन बाद पढ़ेगा, there will be nothing standing between him and his entering paradise except death. तो उसके और जन्नत के बीच कोई भी चीज रुकावट नहीं बनेगी सिवाय मौत की। सुभान अल्लाह। नाउ दिस इज ऑथेंटिक हदीस। क्या मिला हमें कि हर फर्ज नमाज के फौरन बाद, व्हाट डज दैट मीन, कि सुबह में आपने 2 सुन्नत पढ़े, 2 फर्ज पढ़े, तो 2 फर्ज के बाद फौरन आप आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे। दोपहर में आपने 4 सुन्नत पढ़े, फिर 4 फर्ज पढ़े, फिर तो 4 फर्ज पढ़ने के बाद फौरन हम आयतुल कुर्सी पढ़ ले। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आयतुल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़े और तो उसके लिए जन्नत गारंटीड। बीच में क्या है, सिर्फ अब इंतजार उसकी मौत का, क्योंकि मौत से पहले तो जन्नत मिलेगी ही नहीं, isn't it? ओके। और भी कुछ हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक वाकया आपने पढ़े होंगे शैतान का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक हदीस लिख लीजिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की बुलंदी है, हर चीज की बुलंदी है, फुल स्टॉप। कुरान हकीम की बुलंदी, कुरान हकीम की बुलंदी सूरत अल बकरा है, फुल स्टॉप। और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है, तमाम आयतों की सरदार है। हदीस ओवर। इसे रिपीट कर लो क्विकली। अबू हुरैरा रिवायत है, की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की बुलंदी है, कुरान हकीम की बुलंदी सूरत अल बकरा है, और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। हदीस हो। यस। अभी बाकी हदीस आप लोग सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है, वो जिस घर में पढ़ी जाती है शैतान वहां से निकल जाता है, शैतान वहां से निकल जाता है। सो आयतुल कुर्सी इज अ रेमेडी अगेंस्ट शैतान। ओके। फिर ये वाली हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई रात में सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अगर कोई रात में सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो उसे तमाम बलाओं और मुसीबतों से उसकी हिफाजत करता है, जो तमाम बलाओं और मुसीबतों से उसकी हिफाजत करता है। तो रात में सोते वक्त पढ़ेंगे तो एक फरिश्ता आपकी हिफाजत करेगा, कब तक? सुबह तक। ओके। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चंस आपके किए गए थे ना, तो इट वाज नॉट टू पुट यू डाउन कि अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया है तो आई एम सॉरी, इट वाज नॉट टू पुट यू डाउन। आपको पता है कि ये तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि वो इस तरह क्वेश्चंस किया करते थे। अब आप सुनिए कि सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी उबई इब्ने काब
उबई इब्न काब से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि किताबुल्लाह में यानी कुरान में से कौन सी आयत सबसे अफजल है? किसने पूछा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किससे पूछा? उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से। क्या पूछा? कि क्या तुम जानते हो कि कुरान में से कौन सी आयत सबसे अफजल है? तो मैंने अर्ज किया, यानी साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही क्वेश्चन किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी, आंसर किया आयतल कुर्सी सबसे ज्यादा अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और फरमाते हैं कि मेरे सीने पर हाथ रखकर उन्होंने फरमाया कि तुझे तेरा इल्म मुबारक हो, तुझे तेरा इल्म मुबारक हो। दैट मीन्स तुमने सही जवाब दिया, इट वॉज राइट आंसर। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इसीलिए ये जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो सुन्नत तरीका ही हम लोग फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उस पर हम लोग फिर से हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 4, मंज़ल्लज़ी, कौन है, अल्लज़ी जो, यशफ़उ, काइंडली शेयर द स्क्रीन। हाँ, यशफ़उ वो सिफारिश करे। यशफ़उ में क्या वर्ड नजर आ रहा है? जरा गौर से देखिए, व्हाट डू यू सी इन द वर्ड यशफ़उ? शिफात। यस, शफाअत। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन है जो सिफारिश करे, इंटसीड करे, इन दहू, उसके पास, अल्लाह के पास, इल्ला, सिवाय, बिइज़्निही, सिवाय अल्लाह के इज़्न से, सिवाय साथ अल्लाह के परमिशन के। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कयामत के दिन का मालिक भी कौन है? अल्लाह ही है। और कयामत के दिन किसकी इतनी हिम्मत होगी, किसकी इतनी जुर्रत होगी, who will have that courage कि वो अल्लाह के सामने अपनी जबान खोले कयामत के दिन? Nobody will be able to utter a single word. तो कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा उस दिन? अल्लाह ताला फरमा रहे कोई नहीं कर सकेगा, हाँ सिवाय उसके जिसे अल्लाह परमिशन दे। तो ये जो सिफारिश, शफाअत की बात आई है यहाँ पर, इसको बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दिस टॉपिक अबाउट शफाअत, बिकॉज ये थोड़ा सा जो है ना टॉपिक, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, और इंशाल्लाह थर्सडे के दिन वी विल बी स्पेशली डूइंग दिस टॉपिक शफाअत। कैसे होगी, कौन करेगा, किसे अल्लाह ताला परमिशन देंगे, किसकी सिफारिश होगी? बिकॉज हम सब मुसलमान तो इसी भरोसे पे बैठे हैं ना कि हमारे रसूल, हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीबुल्लाह, रसूलुल्लाह, हम सब की सिफारिश कर देंगे। तो क्या हमारा ये अकीदा सही है? क्या हमें इसी भरोसे पे बैठे रहना है, या वो क्या सिचुएशन होगी, इसकी हकीकत इंशाल्लाह थर्सडे के दिन we will try to focus upon it. So if you all can join us on Thursday again to know more about शफाअत, about सिफारिश इंशाल्लाह। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि सिर्फ दुनिया ही में अल्लाह मालिक और मलिक नहीं है, सिर्फ दुनिया ही में जमीन और आसमान को कायम रखने वाला वो नहीं है, आखिरत के दिन का भी मालिक वही है। उस दिन भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। अल्लाहु अकबर। आप सोचे कि कितना डिफिकल्ट डे है वो कयामत का दिन, और उस दिन भी
اگر کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو اس آیت میں ہر روز جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں, دس از دا ریمائنڈر فار یو اینڈ می. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ہم لوگ کتنے ایزیلی پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا سوائے اس کے جسے اللہ پرمیشن دے, اور ہم لوگ پھر بھی الرٹ نہیں ہوتے روز اس آیت کو پڑھ کے کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا تو پھر مجھے کیا کرنا ہے, مجھے آج اور ابھی اپنے اعمال سدھارنے ہیں, اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے. اس لیے آیت کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. But we read it so, what do you say, mechanically. Mechanically we read it and we don't focus upon the main gist of the ayat. This is the main gist of ayat. کہ کوئی تمہاری سفارش نہیں کر سکے گا. کیا سوچ کے تم بیٹھے ہو اتنے آرام سے, نیندیں مار رہے ہو, موویز دیکھ رہے ہو, ٹائم پاس کر رہے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ یہاں پہ عیش کرو گے اور کوئی اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے؟ کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تم کو دنیا میں؟ عیش کرنے کے لیے, مزے کرنے کے لیے. صرف پیسہ پیسہ, پیسے کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہے. پیسہ ہی میرا خدا, پیسہ کمانا ہی میری عبادت. یہ ہم نے اپنی لائف کا فوکس بنا کر رکھا ہے, اور یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیں گے کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاؤ کم؟ تو اٹس ناٹ دا profound truth. ہم اس دھوکے میں نہ رہے. ٹھیک ہے, پھر آیت پورشن 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمو, وہ علم رکھتا ہے, وہ جانتا ہے. کون؟ اللہ. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں. تو اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم, جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے, یعنی جو کچھ تمہارا پریزنٹ ہے بیفور یو, وہ سب اللہ جانتا ہے. اباؤٹ یور پریزنٹ وما خلفہم, اور جو کچھ اس کے بعد آنے والا ہے یا جو کچھ اس کے پہلے گزر چکا. اللہ knows your past, your present, your future. ہمیں کتنا پتا ہے بتائیے تو ذرا. کیا آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ویک, آج ٹیوزڈے نا, پچھلے ٹیوزڈے کو آپ نے کیا کھانا کھائے تھے؟ آپ پچھلے ٹیوزڈے کو 4 بجے کیا کر رہے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ پچھلے سال آج ہی کے دن 21 فیبروری آپ کیا کر رہے تھے؟ پاسٹ تو ہو چکا ہے نا ہمارا, تو کیا ہم جانتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ اگر کسی کو یاد ہے تو بتائیے آپ کہ لاسٹ پچھلے سال پچھلے مہینے 21 جنوری کو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ نہیں یاد ہے؟ اچھا, فیوچر کسی کو یاد ہے؟ پتا ہے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے پتا ہے ہم کو؟ تو یہ ہم انسان ہیں, ہمارے پاس نالج بھی کتنا ہے؟ لمیٹڈ. لیکن اللہ کی نالج از 100% پرفیکٹ, 100% absolute knowledge. اللہ belongs. and اسی لیے ہم کو بتا دیا کہ تم کیا ہو, تمہارا نالج کیا ہے, جس نالج پر تم اتنا اکڑتے ہو, جس نالج پر تم اتنا فخر کرتے ہو. یو آر سو پراؤڈ اباؤٹ یور ڈگریز, یور سرٹیفکیٹس, یور graduations, your post graduations, your PhDs, your posts, تمہاری salary, whether it is in 5 digits or 6 digits or 7 digits. کتنا نالج ہے تمہارے پاس؟ Everything is limited. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ the absolute knowledge belongs to Allah. That is part 5. پارٹ 6 میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ, اور نہیں وہ احاطہ کرتے. احاطہ کا مطلب ہوتا ہے encompass, نہیں وہ گھیر سکتے,
बिशैइन किसी चीज का, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, they cannot acquire anything from Allah's knowledge इल्ला बिमा शाअ, सिवाय उसके जितना वो चाहता है। अल्लाह के पास 100% सारा नॉलेज है और तुम उसमें से कितना ले सकते हो, कितना ले सकते हो, उतना ही जितना अल्लाह चाहता है। जितनी मेहनत तुम करोगे, यस अल्लाह विल प्रोवाइड यू, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए भी लिमिटेशंस है। पूरे जमीन में, आसमान में जितनी मखलूक है, हम सबका नॉलेज अल्लाह से एज कंपेयर टू अल्लाह, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ द वाटर फ्रॉम द ओशन। द एंटायर वाटर ऑफ द ओशन, if we compare it to be the knowledge of Allah, तो हम सब पूरी मखलूक की जितनी नॉलेज है ना, that is only one drop। अल्लाहु अकबर। और इसी चीज पे भी हम लोग बहुत इतराते हैं। we feel so proud about our knowledge, अस्तगफिरुल्लाह। और ये प्राइड ही हमें ले डूबता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला जिसके पास सारा इल्म है, उसमें से जितना वो चाहता है, जिसे चाहता है, और जो सच में इल्म हासिल करना भी चाहता है, तो अल्लाह उसे उतना इल्म दे भी देता है। अब इसके बाद जो आता है क्रक्स, वसिआ, वसिआ कुर्सियुहुस समावाती, वसिआ बहुत वास्ट है, छाई हुई है। क्या छाई हुई है? कुर्सियुहुस समावाती, कुर्सी उसकी, किसकी कुर्सी? आयतल कुर्सी इस आयत का नाम है ना। तो कुर्सी अल्लाह की छाई हुई है, कहाँ? अस्समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन में। ये कुर्सी क्या है? अब हम आ रहे हैं इस टाइटल पर, आयतल कुर्सी कहा गया है ना। तो आपको क्या लगता है कुर्सी का मतलब क्या है? क्या ये अल्लाह का अर्श है? क्या ये अल्लाह का थ्रोन है? नो नो नो। अल्लाह के अर्श के सामने अल्लाह का एक फुट स्टूल है, फुट स्टूल, अल्लाह के कदम मुबारक की कुर्सी, जिस पर अल्लाह ताला के कदम हो के वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो ये कुर्सी जो है अल्लाह की, ये इट इज नॉट द तख्त, इट इज नॉट द थ्रोन, बट उसके सामने एक स्टूल है। सो द रेस्टिंग प्लेस, उसको कुर्सी कहा गया है। ये वो कुर्सी नहीं है, वो चेयर नहीं है जिसे हम समझते हैं, बट इट कैन बी टेकन एज द अथॉरिटी, एज द पावर ऑफ अल्लाह, सिंबॉलिकली। सिंबॉलिक है कुर्सी। हमारे यहाँ भी कुर्सी किसे कहते हैं? द चेयर पर्सन। हम लोग कहते हैं कि द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चेयर पर्सन, सो द वन हु holds the power, authority, symbolic। अगर हम जानना चाहते हैं ये कुर्सी अल्लाह की जो है वो कहाँ छाई हुई है, जमीन और आसमान पर, तो इसके बारे में जो हमें मिलता है नॉलेज थोड़ा सा, कि अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है कि उसके सामने, आप जानना चाहते कितनी बड़ी कुर्सी है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि अल्लाह की ये कुर्सी कितनी बड़ी है? जरा हाथ ऊपर करें प्लीज। अल्लाह की ये कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसके सामने जमीन और आसमान, सातों जमीन और सातों आसमान, सब कुछ मिलाकर एक छोटी सी रिंग होती है ना, रिंग जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं, एक छोटी सी रिंग के बराबर है सातों जमीन और सातों आसमान, एज कंपेयर टू द कुर्सी ऑफ अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे सहरा होता है एक डेजर्ट, और उस डेजर्ट में, इतने बड़े सहरा में आप जानते हो कि कितनी रेत ही रेत होती है,
उस सहरा में अगर एक रिंग कहीं पड़ी हो तो क्या आपको वो मिल जाएगी, नजर आएगी? इतना बड़ा डेजर्ट है, आप सोचिए कि रेगिस्तान है, उस पूरे रेगिस्तान में एक अंगूठी कहीं गिरी पड़ी है, क्या आपको अंगूठी मिल जाएगी, नजर आएगी? विल यू बी एबल टू सी इट? नहीं बाजी। नहीं। वैसे ही अल्लाह के कुर्सी के सामने ये जमीन और आसमान है. Now imagine the kursi of Allah and then imagine the arsh of Allah. Allahu Akbar. Allah के अर्श के आगे this kursi is also a small thing. Now अल्लाह के अर्श के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? अल्लाह के अर्श के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? या आप लोग को ऑलरेडी पता है कुछ अल्लाह के अर्श के बारे में? तो आप लोग बता सकते हो. बाजी इतना ही पता है कि अर्श, अल्लाह का जो अर्श है उसके नीचे जन्नतुल फिरदौस है, यानी अर्श छत है जन्नतुल फिरदौस। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर राइट, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ इसका, और अर्श के बारे में भी वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल. मैं छोटा सा ग्लिम्स ये देती हूँ आपको कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहाँ है. मैंने जो आप लोग को क्वेश्चंस लिखाए थे, तो अभी हम लोग ने देख लिया हु इज अल्लाह, फिर हमने देख लिया हाउ इज अल्लाह, कि उसको नींद नहीं आती, थकन नहीं होती, उसको झोंका नहीं आता, वो कभी थकता नहीं, वो अल हय्यु अल कय्यूम. नाउ वेयर इज अल्लाह इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्लाह कहाँ है? तो अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है. हाँ, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमने देखे कि आसमान कितने हैं, 7 आसमान. ओके, तो अभी समझे जमीन से लेके पहला आसमान, फिर पहले आसमान से लेके दूसरे आसमान के बीच का फासला कितना है? डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्काई टू द सेकेंड स्काई? डज एनीबडी नो? जैसे जमीन से हम देखते हैं आसमान को, उतना है बाजी? नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा, 500 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है. कितना? 500 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस फ्रॉम एक आसमान से दूसरे आसमान तक का. वैसे ही फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान का भी उतना ही है, फिर तीसरे से चौथे, ऐसे करते 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 आप पहुंच गए कहाँ पर? आसमानों के ऊपर. उसके बाद जन्नत है, उसके बाद जन्नत है. आसमान पे जन्नत नहीं है, उसके बाद जन्नतें हैं. और जन्नत के कितने दर्जे हैं, कितने रैंक्स हैं? 100. तो अभी पहले तो 7 आसमान हुए बराबर, और हर आसमान के बीच 500 साल का डिस्टेंस है. आप इमेजिन करें, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स है तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशंस बंद हो जाएंगे, कैलकुलेटर कम पड़ेगा, है ना. फिर 100 दर्जे हैं जन्नत के, और फर्स्ट जन्नत के दर्जे से सेकंड दर्जे तक का डिस्टेंस है 200 इयर्स. 200 इयर्स. तो इस तरह 100 दर्जे जाएंगे. जब ये पूरे 100 दर्जे हो जाएंगे खत्म, तो विच इज द हाईएस्ट ऑफ द जन्नत? जन्नतुल फिरदौस. हाँ, तब जाके जन्नतुल फिरदौस आएगी. जन्नतुल फिरदौस के ऊपर क्या है? जन्नतुल फिरदौस के ऊपर पानी है, पानी, और वही पानी की नहरें बहती है जन्नतुल फिरदौस में. अब उस पानी के ऊपर है अल्लाह का अर्श, सुभान अल्लाह, जिस पर हमारा रब अल अलीयुल अजीम, अल कबीर, अल हय्युल कय्यूम, जल जलाल वल इकराम, वो उस अर्श पर मुस्तवी है. और एट प्रेजेंट 4 फरिश्ते उस अर्श को उठाए हुए हैं. एट प्रेजेंट 4 फरिश्ते उस अर्श को उठाए हुए हैं, और कयामत के दिन 8 फरिश्ते उस अर्श को उठाए हुए आएंगे.
अब कैन यू इमेजिन कि वो 4 फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, उन फरिश्तों की साइज मैं आपको बता दूं तो आप अर्श की साइज को इमेजिन कर लेना। आपको पता है कि वो जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते के कानों के लौ से, फ्रॉम द ईयर लोब, कानों के लौ से कांधे तक का, यानी उस फरिश्ते के ईयर लोब से उसके शोल्डर तक का डिस्टेंस कितना है? 700 ईयर्स का डिस्टेंस। कितना? 700 ईयर्स का डिस्टेंस। कहां से कहां तक? उस फरिश्ते के कान से उसके शोल्डर तक। तो कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ दोज एंजल्स, उन फरिश्तों की साइज जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। समझ आ रही है बात? आई नो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ये सब गैब की बातें हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है। जितना हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतना ही नॉलेज हमारे पास, बाकी तो हमको इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब दीदार होगा और जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में हम सबको आला मकाम मिले और हम दीदार कर सके अपने रब का और उस जन्नतुल फिरदौस का और उन नहरों का, इंशाल्लाह आमीन। तो अगर ये फरिश्ते की साइज ये है तो अर्श की साइज क्या होगी, तो कुर्सी की साइज क्या होगी। तो फिर 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करके देखिए कि हमारे रब्बुल इज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात क्या जबरदस्त, क्या परफेक्ट जात है वो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, isn't it? तो जब अल्लाह की ये कुर्सी छाई हुई है जमीन और आसमान पर, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, दिस इज द 8th पोर्शन, और नहीं वो थकाती अल्लाह को हिफाजत, हिफ्जुहुमा, हुमा आया है दोनों के लिए, इन दोनों की यानी जमीन और आसमान की हिफाजत करना अल्लाह को बिल्कुल थकाता नहीं, अल्लाह को बिल्कुल बोझल नहीं करती। अल्लाह डजंट फील टायर्ड एट ऑल। कब? जमीन और आसमान की हिफाजत करने में। तो अगर ये जमीन और आसमान की हिफाजत, कायनात की हिफाजत अल्लाह को नहीं थकाती, तो फिर आपकी और मेरी हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि इस आयत को पढ़ लो और समझ जाओ कि क्या जात है अल्लाह की। फिर अल्लाह तुम्हें शैतान से भी हिफाजत कर लेगा, तुम्हारी जिन्नात से भी, बीमारियों से भी, मुसीबतों से भी, तकलीफों से भी। इसीलिए इस आयत को हिफाजत की आयत भी कहा गया है। और इसीलिए जब हम इस आयत को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं कि वो हमारी हिफाजत कर ले। और इसीलिए जब हम हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा जहन्नम के अजाब से भी। इसीलिए जन्नत गारंटीड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने तो इसे मैकेनिकल काम कर लिया है, इसे हम इस तरह समझते ही नहीं कि इसका हम पर इम्पैक्ट भी हो। तो वो अल्लाह जो जमीन और आसमान की हर चीज की हिफाजत कर रहा है और इसमें उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो फिर आप और मैं क्या चीज है? वो हम सब की हिफाजत करने में
बिल्कुल भी नहीं उकताता। क्यों? क्योंकि वो है वहुवल अलीयुल अजीम। ये अल्लाह ताला के और भी ब्यूटीफुल नेम्स है। ये लास्ट पोर्शन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो लिंग्विस्टिक सिमेट्री मिराकुलस है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जितनी भी कोशिश करनी थी कर ली कि मैं इसे 1 घंटे में कंप्लीट कर सकूं, बट वी कैन नॉट जस्ट रश विथ इट जब तक कि ये हमारे दिल में ना उतरे इंशाल्लाह। तो we will stop here and continue on Thursday inshallah. Jazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Reflection time. बाजी Quick reflections, okay? मैम, One, आज हमें पता चला कि आयतल कुर्सी that we read in so much speed without realizing it actually has 9 parts and 9 statements, which today we went in depth and we understood, or we so many questions are answered, like who is Allah and how is Allah and where is yes, Allah, and बहुत magnitude of the kursi, and it was beautiful. yes, We need a lot of insight to understand this, so jazakallah yes. khair. Ameen. Nishat, I want new students also to speak today. आप लोग भी बाद में बोलो. Okay. If anybody has joined today for the first time, आप लोग जरूर शेयर करें आपका रिफ्लेक्शन. Kindly raise your hand. Anybody? I want like Amin to speak, and if I have my brothers there, that would be very nice. Zainab Appi. बोलिए. शैला वसीम. शैला वसीम, unmute yourself. हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह. जी, मैं बिल्किस जी। हाँ अम्मी. हाँ, आयतल कुर्सी में अल्लाह ने अपनी पहचान करवा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह. Yes. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. I understood that कि हम कितना भी काम कर लेते हैं हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, पर अल्लाह कभी नहीं थकते, वो चाहे कितना भी काम कर ले. And अल्हम्दुलिल्लाह. Yes. And शाहिदा. अस्सलाम वालेकुम बाजी. आयतल कुर्सी पढ़ने से एक फरिश्ता हमारी हिफाजत करता है, दिल से पढ़े और समझ के पढ़े तो और भी. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, हम समझ के पढ़ेंगे तो हमें पता होगा ना कि फरिश्ता हिफाजत कर रहा है हमारी, वरना हम तो बस पढ़ लेते और चल जाते हैं. देन यू डोंट रियलाइज. यस किश्वर. अस्सलाम वालेकुम बाजी. बाजी मैं हमेशा सोचती थी कि वेयर इज अल्लाह, अल्लाह कहाँ रहता है, लेकिन आज पता चल गया कि अल्लाह पानी के ऊपर अर्श में बैठे. और मैं हमेशा सोचती थी कि आयतल जो कुर्सी है वो मीन्स वही अल्लाह की अर्श है, लेकिन आज पता चला कि वो अर्श नहीं, वो स्टूल है सिर्फ. सोचिए, वो स्टूल के बारे में हम लोग पढ़ के इतना हिल जाते हैं. आज जो आपने ये बताया कि अल्लाह अर्श में है और कहाँ पे अल्लाह है, मुझे तो ये सोच के मुझे आंख से आंसू आ गया. मैंने ये रियलाइज हुआ कि अल्लाह इतने बड़े हैं और हम लोग उनके सामने हम लोग उनके बंदे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं करते अपने अल्लाह के लिए. तो हम लोग क्या मीन्स अल्लाह को देख सकेंगे वैसे जैसे अल्लाह मीन्स ही डिजर्व एवरीथिंग, मगर हम लोग वैसे काम नहीं करते जी बाजी जैसे कि उनको हम लोग देख सके. वो लायक ही नहीं हम लोग. एग्जैक्टली. यस अंजुम. अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी में अपनी पहचान बताई है और उसने इतनी मखलूक को पैदा किया और हर एक की परवाह भी करता, हर एक की जरूरत का भी ध्यान रखता है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं है वो. अल्हम्दुलिल्लाह. यस. अफशीन. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. ये मेरी भी बहुत फेवरेट आयत है और आज मुझे अच्छा लगा ये सुन के. आज मैंने ये मिस नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह. अभी थर्सडे को इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. अफरा. डॉक्टर शबाना. जी बाजी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
बाजी मेरा एक क्वेश्चन है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने समझाया लाइट ईयर्स को लेके। एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 लाइट ईयर्स हैं और ऐसे कुल 7 आसमान हैं। बाजी मेरा 500, देखिए 500 years लिखा हुआ है, but we don't know that whether it is light years or what years, वो अल्लाह ही जानता है, ये सब गैब की बात है, nobody can measure it, right? ओके बाजी Yeah. मेरा सवाल ये था कि सिदरतुल मुंतहा जो है तो ये हाँ, 7वें आसमान के बाद है और उसके बाद जन्नतें शुरू होती हैं। we will discuss it on Thursday inshallah, okay? जी, हुस्ना बाजी, आफरा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। जिस माल पे और हमारे ज़रात पे भी आयतल कुर्सी फूकते हैं तो उसकी हिफाजत होती है बाजी। हर चीज भी की हिफाजत हो जाती है, अल्लाह कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, सलमा। आयतल कुर्सी जिस घर में पड़ी जाती है शैतान वहां से निकल जाता है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स एंटीडोट। तबस्सुम, सुरैया, शमीम, जरीना, क्विक। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उन्होंने हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी अता की है। इंशाल्लाह मैं डेली आयतल कुर्सी पढ़ूंगी समझकर, है ना? जी इंशाल्लाह। यस, शमीम। बाजी इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्मर ऑफ गॉड, एक प्रोटेक्शन कहा गया है इसे। इसे मैं सुबह शाम दोनों वक्त पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अभी बहुत सी हदीस इसके बारे में और पढ़ना बाकी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अबाउट द हिफाजत एक वाक्य हमको मिलता है, that also we will see. It is not possible to cover everything in 1 hour. Okay, Tabassum, any more reflections? Hasina, Hikmat Appa, जी बाजी, Kanis? मैं भी फर्ज नमाज के बाद हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ बाजी। आज क्या सीखा वो बताओ ना तबस्सुम। आप पढ़ते हो तो वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हसीना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। आयतल कुर्सी में अल्लाह सुब्हानो ताला के अनलिमिटेड पावर्स के बारे में पता चला और ये पावर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह फील करते हैं बाजी, इस तरीके से कुरान पढ़ रहे तो, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं अल्लाह से साइलेंटली भी तो हमारी दुआएं कबूल होती है और वो पावर्स को हम फील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। खदीजा आंटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम नहीं है, वो मलिक भी है, यानी दोनों चीज है इसमें। और अल्लाह की ये ताकत यानी पावर, विजडम, हर चीज इस आयत में आ गई है। माशाअल्लाह। हिकमत आपा। अस्सलाम वालेकुम। आयतल वालेकुम कुर्सी सलाम। ये मस्जिद की अजीम आयत है और हर फर्ज नमाज के बाद इसकी पढ़ने की बड़ी फजीलत है। और मरने के बाद मतलब मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोक सकती हमें जन्नत में जाने से। अल्हम्दुलिल्लाह आज पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीमा आंटी। हाँ बाजी, इसकी खूबियां आप इतने अच्छे पहले भी पढ़ाए थे और आज उसमें 4 चांद लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह समझने में बहुत यानी फिर उस पे अमल करना ज्यादा और ये हो जाता है जैसे सुनते जाते हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए रिमाइंडर्स अच्छे हैं। यस सुरैया। जी बाजी, आयतल कुर्सी से ये हमको पता चला कि अल्लाह ही माबूद है, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। सिर्फ इस्लाम में ही एक ऐसा अल्लाह ही है इबादत के लायक, बाकी जो दूसरे लोग जो करते हैं उनके माबूद बाजी, उनको सबको नींद भी आती है और वो उनकी जाती जिंदगी नहीं है, अल्लाह की जाती जिंदगी है और हमारी अताई जिंदगी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चले दुआ पढ़ लेते हैं।